لاہور میں 1000 بیڈ کے ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ مشکلات کا شکار۔ محکمہ خزانہ نے زمین کی خریداری کے لیے 2 ارب دینے سے انکار کر دیا۔ محکمہ خزانہ نے منصوبے کے لیے LDA سے زمین خریدنے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ فیروز پور روڈ پر 1000 بیڈ پر مشتمل ہسپتال کی تعمیر کا منصوبہ قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے الفا کریم ٹاور کے عقب میں موجود زمین ہسپتال کے لیے مختص کرنے اور زمین 2 ارب روپے کے بدلے محکمہ صحت کو دینے کی منظوری دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ نے زمین کی خریداری کے لیے فنڈ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ نے اعتراض اٹھایا ہے کہ LDA گورننگ باڈی کے اجلاس میں محکمہ صحت کے حکام نے سوشل سیکٹر منصوبے کے لیے زمین مفت میں حاصل کیوں نہیں کی۔ محکمہ خزانہ نے کہا کہ محکمہ صحت زمین کی خریداری کے لیے گورننگ باڈی سے دوبارہ رجوع کرے اور فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرے۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں انصاف صحت کارڈ پر علاج کی سہولت بند کر دی گئی۔ اسٹیٹ لائف انشورنس نے کورونا کے بعد ڈینگی وبا سے بھی ہاتھ کھینچ لیے۔ کارڈ ہولڈر علاج کے لیے دربدر ہو گئے۔ انصاف صحت کارڈ کے حامل افراد پر پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق صحت کارڈ رکھنے والوں کو گزشتہ 1.5 ماہ سے پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی تھی، جسے اچانک حکومتی ہدایت پر بند کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسٹیٹ لائف انشورنس نے پرائیویٹ ہسپتالوں کو انصاف صحت کارڈ پر ڈینگی بخار سمیت وبائی امراض میں مبتلا مریضوں کو علاج فراہم کرنے سے روک دیا ہے۔ انصاف صحت کارڈ پر پرائیویٹ ہسپتالوں میں کورونا کا علاج پہلے ہی بند ہے۔ پنجاب سوسائٹی میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈرائیور مالک سے 2 کروڑ 10 لاکھ لوٹ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں پنجاب سوسائٹی میں ڈاکو شہری اشرف سے 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کیش لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شہری محمد اشرف جہلم اور ملتان میں پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے۔ محمد اشرف سیالکوٹ سے 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی رقم لے کر لاہور آیا۔ اس دوران محمد اشرف کے ڈرائیور ظفر اقبال نے 2 نامعلوم ساتھیوں کی مدد سے اپنے مالک کو لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے بعد تینوں ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے محمد اشرف کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں نیا موڑ۔ FIA پروزیکیوٹر نے کیس کو بینک جرائم کوڈ کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دے دیا۔ شہباز شریف کے وکیل بولے کیس سماعت کے لیے پہلے کیوں جرائم کورٹ میں لگایا گیا؟ 1 سال ہو گیا FIA نے تفتیش مکمل کی اور نہ ہی چالان جمع کرایا۔ عدالت کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی، رکاوٹیں لگا کر راستے بند کر دیے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے۔ بینک جرائم کورٹ کے جج سردار طاہر صابر نے سماعت کی۔ FIA کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ شہباز شریف کے جواب کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے وکیل بولے 1 سال ہو گیا، FIA نے تفتیش مکمل نہیں کی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کیس سادہ نہیں، تفتیش ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، یہ کیس بینک جرائم کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت پر آپ کے موقف پر بحث کرا لیتے ہیں۔ شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ FIA اینٹی کرپشن سرکل نے مقدمہ درج کیا۔ بینک جرائم کورٹ میں پہلے کیوں کیس سماعت کے لیے لگایا گیا؟ عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، ہوش ربا مہنگائی سے عوام پریشان ہے۔ حکومت کی ناکامیوں اور مہنگائی کے خلاف پوری قوم باہر نکلے گی۔ ساری قوم باہر نکلے گی انشاءاللہ، مہنگائی کے خلاف ساری قوم باہر نکلے گی انشاءاللہ۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی انتقام کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ زیادہ دیر یہ کام چلنے والا نہیں ہے اور عمران نیازی صاحب کو آٹا چوری، چینی چوری، بجلی چوری، LNG چوری، ادویات چوری، اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور کارکنان بھی قائدین سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے۔ کارکنان اپنے رہنماؤں کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ حمزہ تیری جرت کو سلام ہے، سلام ہے، حمزہ تیری جرت کو سلام دے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، نیازی تیرے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پہلے ہی جیل میں رکھا گیا، لیکن آج تک کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کا 2021-22 کے لیے 24 ارب 16 کروڑ 30 لاکھ کا بجٹ تیار۔ بجٹ آئندہ بدھ کو بورڈ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔
सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का 2021-2022 के लिए 24 अरब 16 करोड़ 30 लाख का बजट तैयार कर लिया गया है। बजट आइंदा बुध को बोर्ड इजलास में पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट की मद में 23 अरब 28 करोड़ 80 लाख, जबकि नॉन डेवलपमेंट बजट में 77 करोड़ 50 लाख रखे गए हैं। CBD की जानिब से हुकूमत पंजाब को शेयर की मद में 2 अरब 34 करोड़ रखे गए हैं। आमदन की मद में 18 अरब 11 करोड़ 60 लाख का सरप्लस तखमीना लगाया गया है। तनख्वाहों की मद में 44 करोड़, इंतजामी अखराजात की मद में 31 करोड़ 70 लाख रखे गए हैं। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 10 करोड़ और मार्केटिंग के लिए 21 करोड़ 26 लाख रखे गए हैं। सेंट्रल बिजनेस वॉल्टन बाब पाकिस्तान मौजूदा मंसूबे के लिए 16 अरब रखे गए हैं। DHA के फेज 6 और फेज 9 को मिलाने के लिए अहम मंसूबा। DHA को 2 रोया फुल हाइट नए अंडरपास का टेंडर 56 करोड़ 87 लाख की कम बिड मौसूल हो गई। DHA के अहम तरीन टेंडर में फास्ट ट्रैक, NLC और हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने हिस्सा लिया। फास्ट ट्रैक ने 64 करोड़ 96 लाख और NLC ने 60 करोड़ 21 लाख की बिड दी। ज़राए के मुताबिक हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने सबसे कम बोली 56 करोड़ 87 लाख की देकर बिड अपने नाम करने की पोजीशन मजबूत कर ली। अंडरपास 600 मीटर तवील 2 रोया ड्यूल कैरेज वे होगा। अंडरपास फेज 6 से फेज 9 बेदियां रोड को क्रॉस करेगा। अंडरपास का वर्क ऑर्डर मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज अब शहरियों से लूट मार नहीं कर सकेंगी। काबीना कमेटी ने पंजाब कमीशन बराए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का बजट मंजूर कर लिया। काबीना कमेटी ने इस कमीशन के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए बजट मंजूर किया। कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को रेगुलर करेगा। कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को ख़त्म करने का भी इख्तियार रखता है, जबकि कमीशन जुर्माना करके गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को रेगुलर भी करेगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद इस कमीशन के सरबराह मुकर्रर हैं। लाहौर पर आलूदगी के साए मजीद गहरे होने लगे। फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 350 तक जा पहुंचा। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस अक्टूबर में भी मौसम नहीं बदल सका। दूसरी जानिब आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। और अभी आपको बताएं कि चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर ने UET सिंडिकेट के फैसलों को कल अदम करार दे दिया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार आफ्ताब अहमद खान की तनख्वाह में कटौती और वार्निंग लेटर को मनसूख कर दिया। गवर्नर पंजाब और चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर ने UET के असिस्टेंट रजिस्ट्रार आफ्ताब अहमद खान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। चांसलर की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आफ्ताब अहमद खान का अपने दोस्त को इमरजेंसी में हेल्थ सेंटर लाना गैर कानूनी नहीं है। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर का काम इंसानी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वाइस चांसलर की कायम करदा कमेटी ने आफ्ताब अहमद खान का बयान रिकॉर्ड किए बगैर एकतरफा रिपोर्ट मुरतब की। जानिबदार इंक्वायरी की बुनियाद पर सिंडिकेट ने आफ्ताब अहमद को तनख्वाह में कटौती और वार्निंग लेटर जारी किया। गवर्नर पंजाब ने तनख्वाह की कटौती और वार्निंग लेटर को मनसूख करने के अहकामात जारी कर दिए। आफ्ताब अहमद ने UET वाइस चांसलर और सिंडिकेट फैसले के खिलाफ गवर्नर पंजाब से अपील की थी। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में हाउस अलॉटमेंट और हाउस रेंट में बेज़ाब्तियाँ पाई गईं। यूनिवर्सिटी की सरकारी रिहाइश लेने के साथ तनख्वाहों की मद में 85,000 रुपए तक माहाना हाउस रेंट वसूल करने का इंकशाफ हुआ। डेप्यूटी रजिस्ट्रार कॉमसेट रशीद अहमद खान सरकारी रिहाइश में रहने के बावजूद 85,000 रुपए हाउस रेंट वसूल कर रहे हैं। इंचार्ज वर्क्स डिपार्टमेंट अफजल बेग और उनकी अहलिया प्रोफेसर सोबिया बेग बिल तरतीब 90,000 और 70,000 रुपए माहाना हाउस रेंट ले रहे हैं। एडमिन कोऑर्डिनेटर शाहिद लतीफ 85,000 रुपए और मैनेजर HR डॉक्टर आमिर रशीद 75,000 रुपए हाउस रेंट वसूल करते रहे। कवायद के तहत सरकारी रिहाइश रखने वाले हाउस रेंट वसूल नहीं कर सकते। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम 2021 का मुसविदा तैयार। मखसूस नशिस्तों की तादाद बढ़ाकर बुजुर्ग और ताजरों को भी नुमाइंदगी दे दी गई। शहर में बल्दियाती नुमाइंदों की तादाद 71 हो गई। मेयर के साथ 45 जनरल काउंसिल्स की नशिस्तें होंगी, जबकि 10 नशिस्तें खवातीन, 8 लेबर, 3 नौजवान, 2 बुजुर्ग, 2 अक़लियती अरकान और 1 नशिस्त ताजरों के लिए मखसूस होगी। बल्दियाती निज़ाम के मुसविदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। नए निज़ाम में खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान, लेबर और ताजिरों के लिए मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में बल्दियाती नुमाइंदों की तादाद 71 हो गई। मेयर के साथ 45 जनरल काउंसलर्स की नशिस्तें होंगी। 10 नशिस्तें खवातीन, 8 लेबर, 3 नौजवान, 2 बुजुर्ग और 2 अक़लियती अरकान और 1 नशिस्त ताजिरों के लिए मखसूस होगी। डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के तहत 5 इदारे होंगे। उनमें सेहत, तालीम, समाजी बहबूद, खेल और बहबूद आबादी के महकमे शामिल हैं। मेयर का 6 इदारों पर इख्तियार होगा।
पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली का मामला आइनों कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल काबीना कमेटी के क़याम का फैसला कर लिया गया। महकमा कानून, बल्दियात, प्रोसिक्यूशन समेत मुतल्लिका महकमों के वज़रा और एडवोकेट जनरल समेत आला हुक्काम कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। बल्दियाती इदारों के ट्रांजेक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए काबीना कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से चौधरी मोहम्मद हुसैन नजफ की सरबराही में वुकला के वफ़द ने मुलाकात की और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला वुकला बरादरी के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत समेत कई मराद दी, जिसे शहबाज शरीफ हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा, साबिका हुकूमत ने हमारे फलाही मंसूबों को बंद करने में कोई कसर न छोड़ी। अगले साल अप्रैल तक महंगाई और बढ़ेगी। आटा, चीनी, घी की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नहीं, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। कम नहीं होंगी। देखिए, एक बात है कि दुनिया आप मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो प्रिडिक्शन और मुश्किल हो जाती है। लिहाजा आप बिल्कुल आप कह रहे हैं, जिसे कहते हैं कतियत से मुझे ना बड़ा स्पेसिफिक करना मुश्किल होता है, लेकिन आप कह लें कि अभी तक कीमतों का ट्रेंड अपवर्ड है। 320 रुपये गंदम का इंटरनेशनल रेट है सर। 320 रुपये से कम होना, $320 से कम होने का अप्रैल तक कोई इम्कान नहीं है। अभी आपको बताएं, नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बलूचिस्तान के फील्डर्स फील्डिंग के दौरान टकरा गए। अब्दुल वाहिद को स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। अब्दुल वाहिद बंगलजई को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और बड़ी इंजरी से वो महफूज रहे हैं। नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, बलूचिस्तान के फील्डर फील्डिंग के दौरान टकरा गए। अब्दुल वाहिद को स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। अब्दुल वाहिद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी गई और वो बड़ी इंजरी से महफूज रहे। गवर्नर हाउस में क्रिकेट टाकरा ऑपोजिशन के नाम रहा। ऑपोजिशन ने हुकूमती टीम को बेस्ट ऑफ 3 सीरीज में 2-1 से हरा दिया। सियासतदान भी क्रिकेट के रंग में रंग गए। गवर्नर हाउस में हुआ पंजाब हुकूमत और ऑपोजिशन का क्रिकेट टाकरा। अरकान असम्बली खूब जम के खेले, चौके छक्के भी लगे और विकेटें भी उड़ी। ऑपोजिशन टीम ने बेस्ट ऑफ 3 सीरीज में 2-1 से फतह समेटी। हुकूमती टीम के कप्तान फैजुल हसन चौहान ने क्रिकेट की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी के किरदार से खुश होकर जिए भुट्टो के नारे लगा दिए। अली हैदर गिलानी साहब जीते हैं, इनके साथ मिलके हम भी जिए भुट्टो का नारा लगा रहे हैं, ठीक है जी। क्यों लगा लो ना। पाकिस्तान और हसन मुर्तजा साहब कहते हैं ला लो, चलो जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। ऑपोजिशन टीम के कप्तान अली हैदर गिलानी का कहना था कि क्रिकेट की बहाली और मुल्क के बेहतर इमेज के लिए अराकीन असम्बली मैदान में उतरे हैं। हमारा जीत या हार नहीं था, मकसद हमारा पाकिस्तान में क्रिकेट का फरोग था। मकसद हमारा पाकिस्तान से ये पैगाम देना था कि पार्लियामेंटेरियंस क्रिकेट खेल के ये पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है। इवेंट के मेहमान खुसूसी अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकनॉयल भी क्रिकेट के दीवाने निकले और क्रीज पर आकर बल्लेबाजी के जौहर दिखाए। इवेंट में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की कमी महसूस की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।